السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ان تمام طلباء کے لیے ہے، بلکہ میں تو یوں کہوں کہ پیرنٹس کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے اور بڑی مفید اور بڑے فائدہ مند آپ کو یہ ثابت ہوں گی۔ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں، جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ اور وہ خود طالب علم اپنی زندگی کو سدھار سکتا ہے اور کامیابی کی چوٹی پر پہنچ سکتا ہے۔ وہ کون سی باتیں ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی؟ سب سے پہلے تو 10ویں والے بچے، 10ویں کے سٹوڈنٹس جو 10ویں پاس کرنے والے ہیں، کوئی 11ویں آرٹس میں جائے گا، کوئی کامرس میں جائے گا، کوئی سائنس میں جائے گا، کوئی ITI کرے گا، کوئی ڈپلومہ کرے گا، تو یہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اب وہ دوست اور وہ ساتھی آپ کو نہیں ملیں گے جن ساتھیوں کے ساتھ آپ نے 5ویں سے لے کر 10ویں تک یا پھر 8ویں سے لے کر 10ویں تک اپنے اکیڈمک ایئرز کو ان کے ساتھ گزارا ہے، انجوائے بھی کیا ہے، انٹرٹین بھی کیا ہے، اور مزے کے ساتھ آپ نے ان دوستوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہے۔ وہ یادیں بھی آپ کی باقی رہیں گی، لیکن اب آپ کے سامنے ایک موڑ آ رہا ہے، ایک گھاٹی آ رہی ہے جس کو آپ کو بہت صحیح طریقے سے اور بہت سنبھل کر پار کرنا ہے۔ اور وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گھاٹی ہے، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ ہے آپ کا 11ویں میں ایڈمیشن لینا۔ کچھ بچے 10ویں پاس ہو جاتے ہیں اور بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، 10ویں تک بڑے کلیور ہوتے ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن جس وقت وہ 11ویں میں ایڈمیشن کرتے ہیں، جس وقت وہ اپنا داخلہ کسی کالج میں لیتے ہیں، اس وقت جو ان کو ان کی صحبت ملتی ہیں، جو ان کے دوست ہوتے ہیں، تو وہ ایسی دوستی کو اختیار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوستوں میں اس طرح سے ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی پہلی پڑھائی کو، اپنے پہلی عادتوں کو، اپنے پہلے برتاؤ کو، ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ 10ویں تک تو انہوں نے بڑی ایمانداری سے گزارا ہے، لیکن 11 میں جب وہ 11ویں کے اندر قدم رکھتے ہیں تو وہاں پر 2-4 دوست نہیں ہوتے ہیں، وہاں پر 10-15 بچے نہیں ہوتے، بلکہ وہاں پر تو 100-200 بچے ہوتے ہیں۔ کوئی سائنس کا بچہ ملتا ہے، کوئی آرٹس کا ملتا ہے، کوئی کامرس کا ملتا ہے، الگ الگ مختلف قسم کے طلباء سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہ ملاقات ان کی ہوتی ہے، اب پیرنٹس بھی کیا کرتے ہیں کہ کسی بچے کا اگر 80% بنتا ہے، کسی کا ابو 80 بنتا ہے، کسی کا 90% بنتا ہے، کسی کا ابو 90 بنتا ہے، تو والدین بھی یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے بچے کا بہت ہائی فائی کالج کے اندر ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ ہائی فائی کالج میں ایڈمیشن کروانے سے کوئی چیز کی ممانعت نہیں ہے، اس سے روکا نہیں جاتا ہے، لیکن جب آپ ایڈمیشن کروا رہے ہیں تو اس وقت آپ کے بچوں کی زندگی میں آنے والے دوست پر بھی نگرانی رکھیں کہ میرا بچہ ہائی اسکول سے کالج میں آ چکا ہے، اس وقت تو وہ پڑھائی کے اندر اوقات کو لگایا کرتا تھا، لیکن آج اس نے سائنس میں قدم رکھا ہوا ہے، میں نے اتنی رقم اس کی بھری ہوئی ہے ایڈمیشن کے لیے، اتنی فیس اس کی پے کی ہے، تو اب میرا بچہ کن دوستوں کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ان باتوں کا اگر والدین خیال رکھتے ہیں، اگر سوچتے ہیں، تو پھر وہ بچے جو اب تک کے ان کی فرمانبرداری میں تھے، اطاعت میں تھے، پڑھائی میں تھے، اپنے اوقات کو پڑھائی میں لگایا کرتے تھے، وقت پر نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، آج وہی بچے انہی عادتوں میں ہمیشہ اپنے آپ کو لگاتے رہیں گے۔ ورنہ اگر ان والدین نے اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیا،
एडमिशन तो करवा दिया, लेकिन उनकी तरबियत पर ध्यान नहीं दिया, उनके दोस्तों पर ध्यान नहीं दिया कि मेरा बच्चा 10वीं पास तो हो चुका है, 80 लेके आ गया, 85 लेके आ गया, 90% मेरे बच्चे का बन चुका है, लेकिन मेरा बच्चा अब किन दोस्तों में रह रहा है। इन चीजों का ख्याल करें वालिदैन, क्योंकि 10वीं तक तो उसके दोस्त कोई और थे, लेकिन जूनियर कॉलेज में आने के बाद उसके दोस्त कोई और हो चुके हैं। तो अब वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो कभी कॉलेज का चक्कर भी लगा लिया करे कि मेरा बच्चा किन दोस्तों में अपने औकात को गुजार रहा है। कभी उसके टीचर से भी पूछा करे कि मेरा बच्चा किन दोस्तों में रहता है, क्या मेरे बच्चे की कोई शिकायत है। इन बातों का अगर वालिदैन ख्याल रखते हैं तो वो बच्चा अपने ट्रैक पर से नहीं हटेगा, अपनी पटरी को चेंज नहीं करेगा, वरना बच्चा आगे चलकर 10वीं के एग्जाम देने के बाद उसको माहौल मिलता है, साइंस का माहौल, आर्ट्स का माहौल। साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स ये लाइन गलत नहीं है, लेकिन वहां पर जो बच्चे होते हैं, अगर कोई बच्चा शरारती होता है, अगर बदमाश कोई बच्चा होता है, अगर उसकी आदतें बुरी होती हैं, तो फिर वो आपके बच्चे को पढ़ाई की तरफ नहीं ले जाएगा, बल्कि वो आपके बच्चे को थिएटर्स की तरफ दावत देगा। वो आपके बच्चे को नमाज का नहीं कहेगा, बल्कि वो आपके बच्चे को तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट नोशी की दावत देगा। अगर वो आपका बच्चा अच्छे दोस्तों में रहता है, अच्छी सोबत इख्तियार करता है, तो फिर आपका बच्चा कदम कदम पे कामयाब होगा। इसलिए इस प्लेटफॉर्म से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो तलबा 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं, अगर वो अच्छे हैं, वाकई में अच्छे हैं और जिंदगी उन्होंने अच्छी गुजारी अब तक के, तो वो आइंदा भी अच्छी जिंदगी गुजारने की फिक्र करें। क्योंकि इतने हजारों रुपये वो बाप खर्च करता है एक बच्चे पर, एक अपने बेटे पर अपना इतना पैसा खर्च कर रहा है, सर्फ कर रहा है, तो क्या उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो बच्चा भी अपने वालिदैन के पैसों का सही इस्तेमाल करे। वो बाप जिसने आंख बंद करके उस पर भरोसा किया है, वो बाप को धोखा देना ये बहुत बड़े खसारे और नुकसान की बात है। और हमेशा याद रखिए कि अगर हम वालिदैन के पैसों का इस्तेमाल सही नहीं करते हैं, तो फिर समझ लेना चाहिए कि हमारी आने वाली जिंदगी तबाही और बर्बादी की तरफ जा रही है। और याद रखो, जिस तरीके से हम हमारे वालिदैन के पैसों का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो याद रखना हमारी आने वाली नस्लें, हमारी आने वाली औलादें भी हमारे उस पैसों का जो हम हलाल तरीके से कमाएंगे, याद रखना वही बच्चे सिगरेट नोशी में, थिएटर्स में बैठकर, नशा कर बुरे बुरे दोस्तों के अंदर घूमकर, इधर से उधर बाइक के ऊपर फिरना, कॉलेजों के चक्कर लगाना, इसी तरीके से वो बच्चे अपने पैसों को जाय करेंगे। इसलिए तमाम पेरेंट्स, तमाम वालिदैन इस बात का भी ख्याल रखें कि वो आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल पर पूरी तवज्जो रखे, क्योंकि आपकी थोड़ी सी गफलत आपके बच्चे की नाकामी का सबब बन जाएगी। 10वीं तक आपने बहुत ध्यान दिया, लेकिन 11वीं में जाने के बाद आपको यह समझ में आ गया कि मेरा बच्चा कोई गलत काम नहीं करेगा, लेकिन ये सोच आपकी गलत है, ये सोच आपकी गलत है। अरे शैतान ने वलियों को नहीं छोड़ा है। कई वली ऐसे थे जो दुनिया से बगैर कलमे के चले गए, कुफ्र पर शैतान ने उनकी मौत करवा दिया। याद रखिए, आप अपने बच्चे पर से एतमाद ना हटाइए, लेकिन उस पर से निगरानी भी ना हटाइए, उसके ऊपर निगरानी रखें। अब बाज लोग ये कहते हैं कि अपने बच्चे का वो घर बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? ऊपर का जो है उसका रूम बन रहा है, ऊपर उसका रूम बन रहा है, हम डबल ताल कर रहे हैं, हम उसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं, मेरे बच्चे का प्राइवेट एक रूम रहेगा जिसके अंदर वो पढ़ाई करेगा। बाप नीचे सो रहा है और बच्चा ऊपर खेल कर रहा है। आज देखते हैं हम कि कमरा भी कैसा होता है, बच्चे का कमरा भी पेरेंट्स ऐसा रख रहे हैं कि वहां पर किसी की निगाह भी नहीं जा रही है।
बल्कि हम इन बातों का ख्याल रखें, खास तौर से कि बच्चे का घर, बच्चे का रूम उस जगह पर रखे पढ़ाई का जिस जगह पर आपकी निगाह जाती हैं, आप उस पर निगरानी रख सकते हैं। अगरचे आप उसको नहीं कह रहे कि मैं तुझ पर ध्यान दे रहा हूं, लेकिन कम से कम आते जाते आप उसके ऊपर तवज्जो दे कि मेरा बच्चा वाकई में पढ़ाई कर रहा है या गेम खेल रहा है, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि मूवीज देख रहा है, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, मेरा बच्चा वाकई में लिख रहा है, जो उसको टीचर्स ने होमवर्क दिया है क्या वाकई में उसको लिख रहा है या फिर लेटर तैयार कर रहा है। इन बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं, तमाम वालिदैन अगर इन बातों का ख्याल रखते हैं, तो यकीन मानिए आप ये मत समझिए आप कि आपका एतमाद बच्चे पर नहीं है, आपका बहुत एतमाद है, लेकिन जिंदगी भर पछताने से बेहतर है, बाप जो है बाद में पछताता है जब औलादें बेकाबू हो जाती हैं, हाथों से निकल जाती हैं, तो फिर वही औलादें इसके सर का दर्द बनती हैं, इसके दिल की बेचैनी बन जाती हैं। और उस वक्त जिस वक्त उस पर ध्यान देना थी, उन औलादों पर ध्यान देना थी, तरबियत पर ध्यान देना था, उस वक्त इसने ध्यान नहीं दिया, इन वालिदैन ने ध्यान नहीं दिया, और आज फिर हाथ मलते रह जाते हैं और 40 साल में ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एसिडिटी, हार्ट अटैक, शुगर, ना जाने डायबिटीज, कौन कौन सी बीमारियां इनको लाहक हो जाती हैं। वजह क्या है? वजह यही औलाद है जिनके बारे में हमको कहा गया था कि हम उन पर ध्यान तवज्जो दे। ये 15 to 21 जो एज होती है, 15 से 21 साल दरमियान की जो उम्र होती है, वो उम्र बहुत अहमियत की हामिल है। इन उम्र के अंदर अगर बच्चे पर हमने निगरानी नहीं रखे, इन उम्र में बच्चों पर अगर हमने निगरानी नहीं रखे, तो फिर आने वाले 60 साल तक बच्चा भी रोएगा और वालिदैन भी रोएंगे। इसलिए वालिदैन अपने बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दे। कोई अगर 10,000 कमाता है तो वो 8,000 कमाए, लेकिन थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों की तरबियत में लगाए, अपने बच्चों पर ध्यान दे। वो बड़े हो रहे, वो छोटे नहीं हो रहे, वो बड़े हो रहे, अपने बच्चों पर निगरानी रखे कि मेरा बच्चा किन दोस्तों में उठता है, किन दोस्तों में बैठता है, वो नमाज का एहतमाम करता है कि नहीं करता है, वो मदरसे में जाता है कि नहीं जाता है, वो कुरान की तिलावत करता है कि नहीं करता है, वो पढ़ाई वक्त पर करता है कि नहीं करता है। इन तमाम बातों को हम मद्देनजर अगर रखते हैं तो यकीन मानिए कामयाबी आपके बच्चे के कदम चूमते रहेगी और आप भी सूख में रहेंगे, आप भी इत्मीनान बख्श रहेंगे, आपके कल्ब को, आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और आपके बच्चे की जिंदगी भी सुधर जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।